For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. And is known for his association with worthy causes, including Project Devi. What we also found out about Vivek was his love for books and reading. As a child, he set up a library in his garage, and his relationship with books continues through his association with the Indian Novels Collective, a not-for-profit initiative to bring classic works of Indian fiction to English readers through creating a community of readers and sponsoring quality translations. Mr. Oberoi. Priyanka Sethia is an actress known for her work in movies like Bloody Moustache, Begum Jaan and Hasina Parker. It's lovely to have you here. Professor Ashwini Kumar, the co-founder of the Indian Novels Collective, may I request you to please come on stage and take the session forward. May we request all of you to please take your seats so that we can begin with the session. Shall I start? First of all, I'm very delighted to have been invited by Kalagoda Festival, and I'm particularly very grateful to Anjali Purohit for curating this lovely panel on connecting literature and cinema. So let me say a few words about Indian Novels Collective. Indian Novels Collective is a non-profit production studios, shooting studios. After all that, they are here today sharing their love for literature, sharing their love for the connection between literature and cinema. Thank you very much for being with us today, and I will continue to be with you. And please come in. Good evening, everyone. Before we begin, a special shout out to Shinjini Kumar, who you left out. अक्सर बीवी को आदमी भूल जाता है और घर पे डंडा खाने के बाद याद आता है. And of course, the ever so graceful, my dear friend and colleague, I respect so much, Dolly Thakur. Thank you for being here tonight, and thank you for making this wonderful evening in this really beautiful space possible. It's amazing that we're doing this at the David Sassoon Library, and we're talking about novels because if you know a little bit about David Sassoon, he came in from Baghdad and was an opium trader. That's where he made all his money, opium. And now I think from money from opium created this library of books, which I think is the greater nasha, right? The more lasting nasha. This evening, we'll attempt to rekindle, reconnect with great Indian writers, novels that were translated to screen. And interestingly, all three won national awards. Interestingly, all three featured women in very pivotal, key roles, and the problems that they face, their triumphs, their defeats, celebrate them all tonight. So thank you for being here this evening, and may I request Neena ji to begin and enthrall us. Big hand, everybody. अजय बैग है, उसको लॉक कर, नीचे का लॉक ओपन करके लॉक कर, ओपन कर लॉक. हेलो चेक, या हम ओके. और अपने ही लोग हैं, जरा पन्ना वन्ना पलटने में टाइम लगे तो माफ कर देते. सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का नावल है, जिसपे श्याम बेनेगल साहब ने फिल्म बनाई थी, जिसमें मैंने एक्टिंग की थी. बड़ा मुश्किल नावल है, पढ़ते हैं, और फिल्म जैसे बनाई, इट वॉज अमेजिंग. हमको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे नावल पे श्याम पिक्चर कैसे बनाएंगे, बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर आप लोगों को मौका मिले तो देखिएगा.
सो इसमें ना एक मानिक मुल्ला है, वो कहानियाँ सुनाता है और 3 लड़कियाँ हैं, लिली, जमुना और शक्ति, जो मैंने रोल किया था। कहानियाँ सुनाता है और फिर छोड़ देता है। कभी कहता है मैं 24 घंटे की कहानी सुनाऊंगा, तो किसी ने ये कहा है कि इसमें एक कहानी में अनेक कहानियाँ हैं, नॉट अनेक कहानी में एक कहानी है, कह भी सकते हैं। और ये क्लिप दिखाए, मैंने कहा आया है, बहुत बुरी एक्टिंग करी थी मैंने, अब मुझे ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है क्योंकि बड़े हो गए हैं हम, बूढ़े हो गए हैं। सो इसका थोड़ा सा मैं पढ़ के बताती हूँ। कुछ भूमिका है जो अज्ञेय जी ने लिखी है, धर्मवीर भारती कहते हैं मैं नहीं लिखूँगा, तो उन्होंने लिखी है। तो प्रेम की कहानियाँ हैं और प्रेम की कहानियों में हमेशा औरत सफ़र करती है, वो तो है ही हमेशा, तो इसमें भी ऐसा ही है। और वो कैसे अपने को, जो मानिक मुल्ला हमारा बंदा है, कैसे अपने को बचा लेता है। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। मेरी दूसरी शंका कथा वस्तु की प्रेम संबंधी अनिवार्यता के विषय में थी। मैं अक्सर सोचता था कि जिंदगी में अधिक से अधिक 10 बरस ऐसे होते हैं जब हम प्रेम करते हैं। उन 10 बरसों में खाना पीना, आर्थिक संघर्ष, सामाजिक जीवन, पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, सिनेमा और साप्ताहिक पत्र, मित्र गोष्ठी, इन सबों से जितना समय बचता है उसमें हम प्रेम करते हैं। फिर इतना महत्व उसे क्यों दिया जाए? सैर सपाटा, खोज शिकार, व्यायाम, मोटर चलाना, रोजी रोजगार, तांगे वाले, इक्के वाले, पत्रों के संपादक, सैकड़ों विषय हैं जिन पर कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। फिर आखिर प्रेम पर क्यों लिखी जाए? जब मैंने मानिक मुल्ला से पूछा तो सहसा वो भावुक हो गए और बोले, तुम्हें बांग्ला आती है? मैंने कहा नहीं, क्यों? तो गहरी सांस लेकर बोले, टैगोर का नाम तो सुना ही होगा। मैंने कहा हाँ, उन्होंने लिखा है, आमार माझारे जो आछे सेगो कोनो विरोहिणी नारी, अर्थात मेरे मन के अंदर जो बसा है वो कोई विरहिणी नारी है। और वही विरहिणी नारी अपनी कथा कहा करती है बार बार, तरह तरह से, और फिर अपने मत की व्याख्या करते हुए बोले कि विरहिणी नारियां भी भांति भांति की होती हैं। अनूढ़ी विरहिणी, ऊड़ा विरहिणी, मुग्धा विरहिणी, प्रौढ़ा विरहिणी भी होती है, अच्छा मुझे नहीं मालूम था, आदि आदि। तथा विरह के भी कई प्रकार होते हैं। बाह्य विरह, पारिस्थिति जन्य, आंतरिक मनस्थिति जन्य इत्यादि। इन सबों पर कहानियाँ लिखी जा सकती हैं। और मानिक मुल्ला का चमत्कार ये था कि जैसे बाजीगर के मुंह से आम निकाल देता है, बाजीगर मुंह से आम निकाल देता है, वैसे ही वो इन कहानियों से सामाजिक कल्याण के निष्कर्ष निकाल देने में समर्थ थे। तो जो मुझे समझ में आया दोबारा पढ़ के और देख के, कि जो मानिक मुल्ला है, जो रोल मैंने किया था सत्ती में, थोड़ा सा बता देती हूँ। तो उसका बहुत बुरा हाल था, गरीब थी, फिर उसका चाचा किसी को बेच देता है उसको, और उसके साथ वो बुरा व्यवहार होता है। तो ये हमेशा मानिक मुल्ला के पास आती, कहती तुम जो कहोगे मैं करूँगी, मेरे को अपने साथ ले चलो, मैं वहाँ नहीं रह सकती। और एक दिन तो पूरे जेवर ज़ेवर लेके उसके पास आ जाती है। और ये अभी पढ़ाई खत्म करके और पढ़ाई करना चाहता है, अपने भाई भाभी के साथ रहता है। वो भाई भाभी कहते हैं कि अब तुम नौकरी करो, हम तुम्हें कब तक पालेंगे। तो ये बड़ी दुविधा में है। तो ये फाइनली एक दिन सत्ती उसके पास आ जाती है, अपना सारा जेवर जेवर जो उसने जमा किया होता है, जो कमाई की होती है, साबुन बेचती है, आ जाती है। और ये तो घबरा जाता है और कहता है तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारी सेवा करूँगी, और कुछ नहीं मांगती, बस सेवा करूँगी। और कहीं कोई सेक्सुअल वो नहीं है, दोनों की कहानी के बीच में कुछ नहीं है। ये घबरा जाता है। अब ये सोचता है खट 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 कि मेरे को तो भाई भाभी चाहिए, मेरे को तो आगे बढ़ना है। और ये इसके अगेंस्ट है क्योंकि तो नीच जाति की गरीब सी है। तो ये तो लेकिन उसको बोलता है तू यहाँ बैठ। अंदर जाता है और अपनी भाभी को बोलता है कि उसके वो जहाँ से वो भाग के आई होती है चाचा के वहाँ से उनको बता दो कि यहाँ। फिर वो लोग आते हैं और ये समझ जाती है कि इसने बताया था। फिर उसको बहुत मारते वारते हैं, ये वो करते हैं। एंड यहाँ पे वो कहानी ख़त्म कर देता है।
फिर एंड में द एंड ऑफ द फिल्म एक्चुअली इज दैट कि अब उसको बड़ा दुख होता है। ये होता है ना कि अपनी गिल्ट फीलिंग को हम कैसे उस पर चादर कैसे डालते हैं ना। तो उसको गिल्ट है कि उसकी वजह से इसकी मार पिटाई हुई, पता नहीं क्या क्या होगा इसके साथ। लेकिन कैसे हम तर्क देते हैं कि जैसे अगर हम कभी झूठ बोलते हैं और हमको लगता है यार झूठ बोला, तो हम अपने को एक तर्क देते हैं, मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो बंदा ऐसा था और उसने ऐसा किया था, तो मेरा झूठ बोलना ठीक है। तो सेम वे एंड में ही सीज सती, हाथ में एक छोटा बच्चा है गोदी में, और एक वो जो रेडी होती है जो भिखारियों की होती है, वो भिखारन सी है बन गई है, और उस रेडी पे उसका चाचा जिसका हाथ टूटा हुआ है वो बैठा है और वो गाड़ी खींच के ले जा रही है, रेडी खींच के। तो वहाँ पे भी वो कहता है कि चलो इसका तो अपना परिवार बन गया। अरे भाई ये क्या परिवार होता है। मैं जब ये जब पढ़ रही थी सब, तो मैंने कहा यार ये खुद तो बच के निकल जाता है ये मानिक मुल्ला है, और लड़कियां जो है, अब लड़कियों का इसमें मैं बाद में बताऊंगी कैसे एडजस्टमेंट है। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि ये धर्मवीर भारती ने इसको कैसे निकाल दिया। यू नो, यू हैव टू से एनीथिंग टू दैट? आई थिंक इट्स फैसिनेटिंग। कहीं ना कहीं उसने एक लूप होल तो बना ही लिया मानिक मुल्ला को निकालने के लिए। आई थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, जब इस पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, यू गेट अ फीलिंग दैट यू कैन जस्टिफाई ऑलमोस्ट एनीथिंग। आप कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं। यस यस यस। And it's just the perspective that you want to show. But I had a question to ask you when I was hearing you speak about this. You know, in real life, you've been a trailblazer, strong, someone to ये look नहीं up. पता मुझे। When you were playing, Sati, of course, back then you were much younger. But today, when you look at that character, vis-a-vis you, how was it? How was the transformation? Because inside there was always that fiery spirit that you were always strong. And Sati is somebody who has no control over her life. मतलब वो she's looking for an escape. कोई मुझे यहाँ से निकाल ले, बचा ले. And you know, you've been the one that said, no, I'll make my own path in your own life. So that performing that character, identifying with that character, was that a challenge? Was that exciting? हाँ, it was exciting, but like I said, if I had to do it today, I would do a much better performance. How would you do it differently? एक उच्छृंखलता के साथ साथ एक क्या बोलते हैं, ठहराव मेरा कम था उसमें। उच्छृंखलता के साथ साथ थोड़ा सा ठहराव था। अगर मैं वो दोनों ला पाती तो ग्रेट परफॉर्मेंस होती। हम चाहते हैं कि क्लिप दिखाएं और इस बात को आगे भी कर फिल्म से। आप अभी नीना जी ने जो आपको दिखाया, जो आपको बताया, खास करके शक्ति के बारे में, तो हम क्लिप दिखाते हैं आपको फिल्म से जिसमें नीना जी का ये किरदार है। ऑडियंस देखिएगा ठहराव था कि अरे हाँ, एक ऐसी मशहूर अदाकारा है, जैसे विवेक ने कहा, अभी मशहूर अदाकारा और एक ट्रेलब्लेजर भी रही हैं आज के दौर में, फेमिनिस्ट दौर में। जरा इनका भी पीएचडी कैरेक्टर देखें प्लीज। वेलकम। क्या पीएचडी है बेचारी। सॉन्ग ले जाते हैं, सॉरी। स्पीड का कुछ हो गया। That's why I believe that books are superior to film. हाँ, Leaves it to your own imagination. You don't need to depend on the audio-visual technical glitches. क्या? उसी से पढ़ते हैं। और मैं एक बड़ी तो एक और कैरेक्टर है, मैं बहुत यशोदा की बात आप नहीं कर रहे हैं। नहीं मैं यशोदा की बात। आते आते इन्होंने मुझे मानिक मुल्ला से मेरी तुलना कर दी। मैंने कहा कि धर्मवीर भारती जी ने भी कहा कि भाई मानिक मुल्ला पे दोष ना देंगे आप। हाँ, क्योंकि उनको पता था सब दोष देंगे उस पे।
सो मेरा कहने का मतलब है विमेन की टेक्निकल ग्लिच होगी, मानिक मुल्ला ये वाले करेंगे, मतलब कि विमेन स्ट्रॉन्ग। तो अगर भैया आप उनको आग में डाल दोगे तो वो अपनी जान तो बचाएंगी ना, पर आग में डालने में, जान बचाने में स्ट्रॉन्ग नहीं गिना जाता। जो उनको आग में डालते हैं उनके बारे में कोई नहीं बोलता। दैट इज़ माई पॉइंट। सो एक और बड़ी अच्छी बात है, तीनों औरतें जब मजबूरी में, जैसे एक है उसकी बूढ़े आदमी से शादी कर दी जाती है, क्या नाम है उसका, ना जिसकी बूढ़े आदमी, उसकी बूढ़े आदमी गरीब है, उसकी बूढ़े आदमी से शादी कर देते हैं। और ऑब्वियसली वो इतना बूढ़ा है कि इसके बच्चा नहीं हो सकता, अब बच्चा तो होना है, तो वो सब जगह जाती है, सारे टोटके वोटके सब करती है, बच्चा नहीं होता। तो फिर कोई कहता है, अरे कोई कहता है कि रोज़ ना जाके गंगा में डुबकी लगाओ सुबह 4 बजे तो तुम्हारे बच्चा हो जाएगा। तो वो रोज़ एक तांगे में बैठ के जाती है सुबह और डुबकी लगा के आ जाती है, और कुछ दिनों के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। हम सबको सटली समझ में आ जाता है कि तांगे वाले से उसका बच्चा हुआ है। उसके बाद जब वो अपनी माँ के घर जाती है कभी बच्चे को लेके, तो उसका सारा हाव भाव सब फर्क हो गया। वो अमीर हो गई है और अब उसकी डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो वो जो चौधराइन है, पर देखो कैसे बदल जाता है। एक बड़ी अच्छी लाइन इसमें है, तो माँ बाप को कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, कुछ कहीं देना होता है, तो उसका थॉट ये लिखा है, हाँ जमुना उसका नाम है। अब अगर जमुना भी माँ बाप पे लुटा दे तो अपने बाल बच्चों के लिए क्या बचाएगी? अरे माँ बाप क्या दिन के हैं, उसे सहारा तो उसके बच्चे ही देंगे ना। और इन द फिल्म व्हाट श्याम हैड डन, कि वो जो साथ में जेवर वगैरह लाई थी वहाँ छोड़ के कुछ छुपा देती है माँ से भी। सो बेसिकली एवरीथिंग इज बीइंग प्रैक्टिकल। तो इतना प्रैक्टिकल कि उसको ये भी मालूम है कि अब मैं माँ बाप को भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए बचाना। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी नाइस थिंग। एंड इन द एंड आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाई इट्स कॉल्ड सूरज का 7वां घोड़ा। ये अज्ञेय जी ने लिखा है। आई हैव टाइम टू से। हाँ, एक छोटा सा ये भी पढ़ोगे। मानिक मुल्ला ने हम लोगों को ये भी समझाया कि यद्यपि इन्हें प्रेम कहानी कहा गया है, पर वास्तव में ये नेति प्रेम कहानियाँ हैं। अर्थात जैसे उपनिषदों में ये ब्रह्म नहीं, नेति नेति कह के ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया है, उसी तरह उन कहानियों में ये प्रेम नहीं था, ये भी प्रेम नहीं था, ये भी प्रेम नहीं था कह के प्रेम की व्याख्या और सामाजिक जीवन में उसके स्थान का निरूपण किया गया है। सामाजिक जीवन का उच्चारण करते हुए मानिक मुल्ला ने फिर कंधे हिला के मुझे सचेत किया और बोले, तुम बहुत सपनों के आदी हो, तुम्हें ये बात गिर में बांध लेनी चाहिए कि जो प्रेम समाज की प्रगति और व्यक्ति के विकास का सहायक नहीं बन सकता वो निरर्थक है। यही सत्य है। इसके अलावा प्रेम के बारे में कहानियों में जो कुछ कहा गया है, कविताओं में जो कुछ लिखा गया है, पत्रिकाओं में जो छापा गया है, वो सब रंगीन झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये वो कह रहा है जिसने खुद झूठ बोल रहा है अपने दोस्तों से कहानियाँ सुना रहा है। बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट धर्मवीर भारती wanted to say कि हर व्यक्ति का अलग अलग रूप होता है, अलग अलग परिस्थितियों में वो अलग अलग तरह से व्यवहार करता है, और ऐसे ही दुनिया चलती है, ऐसे ही जीवन चलता है। अंत में मैंने पूछा कि सूरज के 7 घोड़ों से उनका क्या तात्पर्य है, और अब सपने सूरज के 7 घोड़ों से कैसे संबंध है। सपने तो बड़ी गंभीरता से बोले, देखो ये कहानियाँ वास्तव में प्रेम नहीं वरन उस जिंदगी का चित्रण करती हैं जिसे आज निम्न मध्य वर्ग जी रहा है। उसमें प्रेम से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है आज का आर्थिक संघर्ष, नैतिक विशृंखलता। इसलिए इतना अनाचार, निराशा, कटुता और अंधेरा मध्य वर्ग पर छा रहा है। पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसने हमें हमेशा अंधेरा चीर कर आगे बढ़ने की, समाज व्यवस्था को बदलने की और मानवता के सहज मूल्यों को पुनः स्थापित करने की ताकत और प्रेरणा दी है। चाहे उसे आत्मा कह लो, चाहे कुछ और। आत्मा से समझ ही गए, मतलब सो हो रहा है अभी जो हमारा दिल कई बार मानता नहीं है ना, वो आत्मा कह दिया। और विश्वास, साहस, सत्य के प्रति निष्ठा, उस प्रकाशवाही आत्मा को उसी तरह आगे ले चलते हैं
जैसे 7 घोड़े सूर्य को आगे बढ़ा ले चलते हैं। सो that is what Agay has written for this novel for Dharamveer Bharti. अब जब चलेगी ये तो चला दो, नहीं चलेगी तो आगे चले। नहीं चल रही, ओके। हाँ, तब तक मैं भूल गई, ये रोल मेरे लिए नहीं था, ये रोल शाम ने किसी और को दिया था। तो लास्ट मिनट में वो लड़की नहीं कर पाई, तो वो लास्ट मिनट पे बुलाया गया था ये रोल करने के लिए। So let's have Priyanka, a big hand for Priyanka, everyone please. Let's have her read us from Pinjar. अमृता प्रीतम की पिंजर। अमृता प्रीतम हमारे पंजाबी अदब की सबसे बड़ी शायरा, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की शायद ज़रूरत नहीं। और पिंजर जो है, क्योंकि समय कम है तो मैं कहानी के बारे में ज़्यादा बात करूँगी और अपनी जो व्हाट आई फील अबाउट द सब्जेक्ट उसके बारे में कम। पिंजर जो है ये विभाजन के पृष्ठभूमि पे, द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन पे लिखा गया था। और क्योंकि अमृता जी ने खुद पार्टीशन फील किया था, देखा था, वो खुद लाहौर से दिल्ली आई थी, इसीलिए